ओम शांति। हम लोग सिस्टर डिनिस के मुरली नोट्स बुक से चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, सोल कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। बाबा डिफाइंस सोल कॉन्शियसनेस. Soul consciousness is the same as spiritual consciousness. Spiritual consciousness means that you are in your power. है ना? स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस माना मेरे जो पावर्स है वो सारे पावर्स एक्टिवेटेड है. ही सेज देर आर नो फीमेल्स, ऑल सोल्स आर मेल्स. देर आर implications. It implies that our relationship is fraternal, which means there can be no gender discrimination. Almost all religions, moral, legal and cultural attitudes are based on gender bias. Beyond that, there is discrimination according to race, caste, social standing, नेशनलिटी एंड अदर बायसेस. ये सारे बातों के कारण ही डुअलिटी आ गया, डिस्क्रिमिनेशन आ गया. जनरल ह्यूमन डिसएम्पावरमेंट इज बेस्ड ऑन दिस. और ये डिवाइडेड वी फॉल, ये फ्रेज प्रूव हो गया. इन स्पाइट ऑफ क्लियर ज्ञान, ब्रह्मा कुमारीज कल्चर इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म. And this takes the form of gender, age, nationality, color and religious prejudice. He says, all you souls have a part 50% male, 50% female. Maximum 42 birds male, 42 birds female. Soul consciousness means to neutralize your social and religious conditioning. Among Brahma Kumars and Kumaris, it is extremely hard to be soul conscious at this level. How to remain genderless? There is opposition to females by almost all males, especially the patriarchal men and patriarchal women in positions of power. Many people are motivated by lust for power, property, position and money. This lust is called body consciousness. तो जैसे फ्रेटर्निटी वाला बात है, उसके हिसाब से मेल्स को इम्पोर्टेंट समझा गया, मेल्स को पावरफुल समझा गया है और मेल्स डोमिनेट करते गए. तो वो जो जिस कॉन्शियसनेस को लेकर हम ऊपर से नीचे आए थे, जो भाई भाई का दृष्टि हमने धारण किया है कॉन्फ्लुएंस एज में, संगम युग में, वो फिर दूसरा रूप ले लिया, बॉडी कॉन्शियसनेस रूप. द डोमिनेंट सोशल सिस्टम्स ऑफ इंडिया इन पर्टिकुलर and the rest of the world in general are based on the principles of patriarchy. Brahma Baba broke this in the face of intense social and political opposition. बाबा ने आज भी मुरली में कहा है कि लक्ष्मी को पैर दबाते हुए देखकर उसको चेंज करके हटाने के लिए बोला है. However, now the BK culture has tended to revert to the iron-edged patriarchal system. Although the word Swaraj means independence, among tradition-minded BKs, there is a visceral antagonism to any female that shows signs of independent thinking. Now we need another push in this regard. One problem is the patriarchal women who sustain the patriarchal system. Paradoxically, the existence of patriarchal women has a twofold effect. One is to sustain the patriarchal system, and the second is to break it. तो patriarchal system जो
बना हुआ है उसको सस्टेन करने के लिए फीमेल्स भी पेट्रियाकल बन गए, और दूसरा मेल पेट्रियाकल सिस्टम या दूसरा फीमेल पेट्रियाकल सिस्टम भी उसको ब्रेक करने के लिए फीमेल्स को पेट्रियाकल बनना ज़रूरी हो गया. द पेट्रियाकल सिस्टम What does females को patriarchal बनना जरूरी बन गया? because they need to stand for themselves, and to stand for themselves when the males try to उनको दबाने की कोशिश किया, they try to control the females. As a male. हाँ, तो कंट्रोल जब किया तो फीमेल्स को फील हुआ कि मेल्स हमेशा ये कंट्रोलिंग नेचर होते हैं, कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और ये डोमिनेट करने की कोशिश करने के कारण फीमेल्स उस पोजीशन को लेने की कोशिश किया ताकि फीमेल्स मेल्स को डोमिनेट कर लें. But females भी तो बहुत females को dominate करते हैं. हाँ, So वो क्योंकि भी मेल्स patriarchal, पेट्रियार्कल women. No, so a lot of women who are not that independent, even in the previous era, would dominate other female. Is that stemming from patriarchy? Yes, because it started by maintaining patriarchal system against the males. तो वो वो जो dilute हुआ. हाँ, वो फिर अपना एक हैबिट बन जाता है, तो फीमेल्स के ऊपर भी करते हैं. But even for males पे भी a lot of females cannot show patriarchy on other males a lot of time. They show patriarchy on other females. yes. तो ये जो vulnerable stemming है, from here only. Basically to stand करते वो dilute होते दूसरा शाखा. जो vulnerable होते हैं उनके ऊपर करते हैं. The patriarchal system depends on patriarchal women keeping other women weak on behalf of the patriarchy in exchange for a small amount of power, position, property and money. The patriarchal system is fundamentally exploitative, and this is revealed in the ways the organization functions on the basis of the patriarchal business system or patriarchal business model, which is caste conscious, nationalist and based in misogyny. तो इवन इन हाउसेस जब अगर फादर नहीं है तो वो पेट्रियार्कल सिस्टम ब्रदर के ऊपर ही जाता है, कोई विमेन नहीं लेते हैं. वो हेड ऑफ द जो हाउस, वो कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस है कि वो मेल्स के पास ही जाएगा. But there are other things also. Females के पास भी जाता होगा, but very rare case. When the male is not ready, then it goes to female, or the female is dominating. Right? Soul consciousness means दोनों केसेस में बैलेंसिंग ही है ना. हाँ, दोनों केसेस में अगर मेल संभाल रहा है, फीमेल डोमिनेट कर रही है, तो जो कंट्रोलिंग पावर नहीं हो रहा है, तो इम्बैलेंस है. दोनों ही कंडीशन में बैलेंसिंग है. इम्बैलेंस तो है ही, इम्बैलेंस तो है ही. दीदी asking मतलब दोनों क्या रूट को पकड़ना चाह रहे हैं अबाउट दिस इम्बैलेंसिंग, या क्या मतलब रीजन? दीदी is asking if in both cases it's imbalance, right? सोनी दीदी आप यही पूछ रहे हो ना, क्योंकि आवाज थोड़ा सा कट रहा है. Yes, in both the cases, women patriarchal में भी, patriarchal system में भी imbalance है, men patriarchal system में भी imbalance है. मतलब होल पेट्रियार्कल में ही imbalance से ही स्टेम हुआ. But how did it started on male? I told you, मेल कैसे हुआ है, बिकॉज वो फ्रेटर्निटी सिस्टम डेवलप हुआ है. बाबा ने कहा कि अच्छा, हाँ. सोल्स, ऑल सोल्स आर मेल्स, वहाँ से आए हैं. कुछ कह रहे थे सोनी बहन? फिर ये भी हो सकता है जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस में आए हम लोग, तो हाँ. स्ट्रेंथ के मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ के बिहाफ पर भी ज़्यादा पावर्स दी गई,
because तो बाद में आया है. इनिशियली Okay. तो एवरी सोल इज ए मेल करके ये परसेप्शन से मेल्स को वो पावर दिया गया है. बट एवरी सोल इज अ मेल, ये हाँ. कब से आया ये संगम युग से ही है ना? हम लेकर संगम गए युग हैं से ना. हम लेके गए, वही मैं सोच रही हूँ. हाँ. तो यहाँ से ही स्टेम हुआ है वो मेमोरी में रह गया. यस, मतलब इसके कारण हम हैं, इसके कारण भी हम हैं. एवरीथिंग. तो soul consciousness means becoming firstly non-patriarchal men and secondly non-patriarchal women. The only realistic likelihood for this to arise is through war. After a great war, the majority of men get killed and the remaining women take over activity reserved for men and denied to women. मतलब men का population जब कम हो जाता है तो women को power मिल जाता है. The only chance for patriarchal men to survive is to engage in violence against men and children. The system of socialization was set up in the Manusmriti, which dates back to the beginning of the Iron Age. It created double standards based on the concept that men are first class humans and women are second class and objects to be owned by men. तो women का जो status वो नीचे करते गए हैं. And not only that, women ने accept भी किया है कि हम weak है और ये accept करके और weak कर दिया है. Actually, women are not weak, but women are made weak. In BK culture, most BKs consider this to be the ancient culture of India. Now, on the basis of Gyan, this has to be challenged. What does it take to change a culture or tradition? It takes a minimum of 3 or more generations. The general perception in the BK world is that the first generation of BKs were very powerful. This is the generation of Brahma Baba, Mama and the Dadis, those who came in the 1930s and 40s. The second generation is considered medium level powerful. These are the people who came in the 50s and 60s who are now in leadership positions. The third generation is considered weak. That would be those who came in the 70s and 80s. At the present time, you can see that those who are getting into positions of power in the organization tend to revert to the patriarchal Hindu religious system. जो भक्ति मार्ग में हिंदू रिलीजियस सिस्टम में वो गद्दी पर बैठ जाते हैं और फिर वो पेट्रियार्कल सिस्टम के हिसाब से वो जो बोलते हैं वही करना है, सबको भक्त बना देते हैं, वही चीज़ अभी चल रहा है. Baba has said it is possible to be a BK for 3 lifetimes. Some of the double foreigners are thought to be second birth Brahmins. Now who could be third birth Brahmins? सोचा है who could be third birth Brahmins? Yeah, if I die in between, then I will be third. हाँ, you don't know ना, third Brahmin, third birth Brahmin है या second है. अच्छा ऐसे एक मुरली में third time हाँ, taking birth and part as a of Brahmin. as a Brahmin. हाँ, Oh. क्योंकि बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि So ब्राह्मण बने फिर. logically, whoever comes late into Gyan will be that. The younger they are, पता नहीं. You never know. May not be also. These are the last of no. अभी बाबा ने जब कहा था, हाँ, कल ही कहा था या परसों कहा था कि संडे को कहा था शायद कि ना ड्रामा में नोंद है कि सबको चांस है, इक्वल चांस है. हाँ, right.
तो मीन्स हम लोग इतना डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि हम लोग इतना बाइफरकेशन कर रहे हैं चीजों का, बट ठीक है, तपस्या जिसने ज्यादा की डेफिनेटली बाबा ने ये भी बोला है कि इन्होंने आधे से अंत तक बाबा की मदद की है, बाबा उनको एवजा देगा, लिफ्ट देगा, लेकिन फिर भी चांस सबके पास है, मीन्स यस वेदर इट इज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड. हाँ, क्योंकि लास्ट जो आते हैं ना, एंड में जो आते हैं, उनको तो अलग से वरदान मिला हुआ है हाँ कि लास्ट सो फास्ट जाने वाले आत्मा हाँ, बट वो यहाँ पे पॉइंट इज नॉट कि लास्ट में आए तो उनका क्या, बट वो आत्माओं का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रोल है ना, है ना. दे आर पावर, दे हैव लाइक, दे आर वेरी पावरफुल सोल्स. ऐसा मतलब व्हाई आर वी रेफरिंग टू थर्ड, व्हाई इज दीदी सेइंग दिस पॉइंट, तीसरा जन्म लिया थर्ड टाइम्स. Powerful souls you can may not be. You cannot say that they are powerful souls. I know, I'm just It trying to depends understand. on their purushart. Why is Didi saying this this part in the book? What is the relevance? What should we understand from this? Should turn She on is it. only mentioning the 3 lifetimes which Baba has said. She didn't clearly refer, na? देखते हैं आगे क्या. Soul consciousness means purity. That means true celibacy. Soul consciousness is to be non-sexual. The only way the patriarchy can survive is through sexual violence. है ना? Among the predictions, it is said that the trauma of destruction is sufficient to stun sexuality. It is said that the non-yogi human beings who survive the destruction will not reproduce. I'm not clear about what he was right. तो जब वो होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, है ना, डिस्ट्रक्शन के समय में वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो हो जाएगा, अच्छा. है ना, तो सेक्सुअल वायलेंस ख़त्म हो जाएगा. और जो इसलिए जो नॉन योगी ह्यूमन बींग्स है जो सरवाइव करेगा, दे विल नॉट रिप्रोड्यूस. Okay. But logically, by then all the souls are here. Hence, there is no more soul is going to come. Yes. The question is, it is unclear whether the nuclear fallout effect would desexualize people. वो न्यूक्लियर जो एटम्स है ना, उसका प्रभाव भी रहेगा, केमिकल प्रभाव बॉडी में. Oh, अच्छा. हाँ, I thought it's fear and survival instinct that would that is take there, but interest away it from will reproduction. destroy the body also. Okay. However, the current generation of hypersonic weapons do not produce radiation, dust clouds, mushroom clouds, or other ambient poisons. They just vaporize their targets. ना? तो वो दिखेगा नहीं, बट एनवायरनमेंट में ऐसे चीज़ फैलेगा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही खराब हो जाएगा. Another question concerning designer viruses and their medications which involve changing the DNA of the virus. Does this desexualize people? Just one question. Was this book written before COVID? I don't know. Maybe. Because this It is is what happened during 2021. 2021 or maybe during COVID. Yeah. तो यही बात कह रहे, भिन्न भिन्न चीज़ें निमित्त बनेगा, है ना. जो शूद्र वाला स्टेट वो ख़त्म होगा. अच्छा. शूद्र वाला, Forcefully. हाँ, शूद्र वाला स्टेट में ही ये सारे चीज़ एक्सट्रीम में गए ना. But patriarchy stems from only this. Hmm? Patriarchy starts from only this. Yes. But today, Because lot of souls have. वो जो एक्ट है ना, that act starts from male side only, Okay. right? Okay. The political authorities claim they are trying to prevent the destruction, but it is inevitable. In the context of the end times and circumstances of extreme settlement of karma, love and sex tend to be opposed to each other. In situations where males may assert their dominance or behave abusively, female-bodied yogis
have to adopt the consciousness of a male and interact with males as a male. समझ में आया सोनी बहन? जो आपने बोला था ना कि फीमेल्स वीक है, फीमेल्स आर मेड वीक, और फीमेल ने उस कॉन्शियसनेस में चले गए कि वीक है, बट फीमेल बॉडीज योगीज हैव टू एडप्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ ए मेल, मेल की तरह, जहाँ पर आप यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, जहाँ पर आपको बोलना होता है वहाँ बोलते हो, जहाँ पर वो करेजियस स्टेप उठा के वो शिफ्ट शक्ति स्टेट को अचीव करते हो, वो है कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग ए मेल. एट दिस लेवल ऑफ सेलिबेसी द मेल्स शुड नॉट बी एबल टू सी और रजिस्टर द प्रेजेंस ऑफ ए फीमेल बॉडी. जब वो कॉन्शियसनेस में होंगे तो मेल्स वो फीमेल बॉडी को देखने का ताकत ही नहीं होगा. सो स्ट्रांग यू विल बी. दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल कि ऑरा को चेंज करना. जैसे ही कोई ऐसी बात आ जाता है अपने अंदर, वो वीकनेस, फीमेल वाला वीकनेस आ जाता है, उसको तुरंत चेंज कर देना और वो मेल वाला कॉन्शियसनेस को लाना. जैसे आपने किया था, ऑफिस में गए थे और बॉस को देखते ही हुआ था. कैन यू शेयर दैट? दैट वाज अ वेरी नाइस. पुराना कॉन्शियसनेस था ना, हाँ. कि या तो बॉस के पहले पहुंच जाओ या तो बॉस के बाद निकलो. मतलब वो लुकिंग गुड भी था, डरना भी था. तो उस दिन मैं ऑफिस पहुंची और बाय द टाइम आई रीच एंड माय सीट इज़ नेक्स्ट टू माय बॉस के सीट, मतलब मेरे कुलीग के सीट. तो उसके बाद मैं जाके पहले देखा वो बैठे हुए हैं, तो मैं ना बैग लेके पहले अपने टीम मेंबर जो है मेरी उनके पास जाके बात करने लगी. पहले ही आया कि ऐसा वो एक डर आया, फिर लगा क्या सोचेंगे, लेट आई ये वो, ऐसा लेट नहीं. तो फिर मैंने तो 2 मिनट में एक्चुअली वहाँ से हटी, फिर मैं एक रूम में एक्चुअली गई, पता है. फिर मैंने अपने आप को बोला ये क्या है, ओ नहीं मैं वॉशरूम गई, मैंने अपने बोला ये क्या है, ये कौन सी बात हुई, सीधा जाओ वहाँ पे. तो फिर मैं गई सीधा बैग लेके, एकदम मुँह उनके एकदम फ्रंट के सामने बैग रखा मैंने अपना. फिर बैग से अपना सामान निकाला, लाइक प्रॉपरली दैट आई जस्ट केम टू ऑफिस एंड आई हैव नो फियर. You changed your state, right? And then he was very soft and not talking normally. He didn't say anything to me. He had nothing to do with what this thing. और ये थॉट आज सुबह ऑफिस जाते टाइम भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं थोड़ा लेट जाऊँ. मैं तो लेट जाती हूँ ऑफिस क्योंकि मैं लेट आती हूँ. तो मेरे को उनको लग रहा था, डर थोड़ा सा आ रहा था फिर से वो बोल देंगे मुझे किस दिन. फिर मैंने बोला वो तभी बोलेंगे जब मैं ये सोचूंगी कि तो ऐसे वो रस्सी इधर से जाएगा. तो फिर मैंने अपने आप को ऊपर करा, ऑरा मतलब वही इनविजिबल ऑरा चेंज. यू हैव टू चेंज द ऑरा. तो दिस इज द मैकेनिज्म. आपका ऑरा में अगर वीकनेस वाला बात है तो फिर यू विल अट्रैक्ट ए पर्सन हु विल ट्राई टू कंट्रोल यू. तो जैसे ही वो वीकनेस वाला ऑरा आता है उसका कॉन्शियसनेस को चेंज करके वो स्ट्रॉन्ग ऑरा करना है. यही यहाँ पर बोला गया है. सो इफ दे सी यू एज ए फीमेल they will automatically and subconsciously activate social mechanisms that disempower and overempower the female, diminishing her in her own eyes. तो वो कोशिश करेगा. एक अनुभव शेयर करूं? हाँ. इसमें एक बार आपने मुझे एक स्टेटमेंट बोला था, शायद आपको याद नहीं होगा कि वैसे आपका बाबा वुड हैव यूज्ड यू एज एन मीडियम. बहुत इफेक्टिव स्टेटमेंट था. तो ऐसा क्या होता है ना कि इन माई हाउस होल्ड वर्क और एनी थिंग आई एम वेरी, मतलब कि ऑफिस और ये सब में जो दुनिया में दिखाते हैं, जो मेल करते हैं, वो वाला मैं एक्सटर्नली आई डू प्रिटी नाइसली. जो इंटरनली जो दुनिया में दिखाते हैं फीमेल करते हैं, कुकिंग और दी हाउस होल्ड थिंग, आई एम नॉट बैलेंस्ड एट दैट. आई डोंट नो मच ऑफ दैट. तो कुछ तो एक बार आया सीन और कहीं से, बट इंटरनली आई एम स्टिल दैट. वो डरते हैं मेल से, वो मतलब जो ट्रू सेंस में जहाँ अंदर दिखाने की बात होती है. तो आपने एक बोला था लाइन कि अगर ये मेल एनर्जी है या अपने आप को कुछ बोल रहे हो या ऐसे हो या ये हो, तो मेल एनर्जी, ये एनर्जी अगर जब तक नहीं है तो दिस इज़ अ फीमेल एनर्जी ओनली, राइट. यू टॉक अबाउट
like that you have these energies high, then you should also have, this is the actual energy. Internally be you should be a male. Internally, Hmm. not externally. Yes, yes. तो उसी समय क्या है कि सोशल मैकेनिज्म के हिसाब से फीमेल्स को डिसएम्पावर करने के लिए, ओवर पावर करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे बातें ऑटोमेटिकली आएगा जब वो आपको फीमेल देखेंगे. दे विल एक्टिवेट सोफिस्टिकेटेड masculine socially condoned tactics to violate her with verbal violence. मतलब डराने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो सारे वीकनेस को मालूम रहता है, उस फीमेल का वीकनेस क्या है. वो सारे बातों को यूज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि वो फीमेल डर जाए. द फीमेल योगी मस्ट रिस्पॉन्ड एज ए मेल, which means to fight back. That means that she as a male must deactivate his sense of his masculinity, where it is expressed as male violence against the female. If she as a male destroys his male ego, then he is neutralized and incapacitated, emasculated. जब वो फीमेल बॉडी में जो सोल है वो अपने लिए स्टैंड करना सीख जाती है, एंड हम सबको अनुभव है, जहाँ पर हमने स्टैंड किया वहाँ पर एनर्जी चेंज हो गया, जहाँ हमने गिरगिराया वहाँ पर हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश हुआ. द मेल बॉडीड योगी मस्ट सबमिट टू द एनर्जी ऑफ इनकॉर्पोरियल गॉड when flowing through the form of the female yogi as male. Wow. Is it like in every time? हाँ, क्योंकि आप उसको, उस आत्मा को सेल्फ कनेक्ट कर दोगे. इसमें पता है, इसमें एक बहुत ही सटल, ये तो बात बहुत सही है, बट ये प्रैक्टिस के टाइम एक सटलनेस आना चाहिए. क्योंकि अभी हम ज्ञान ले रहे हैं, एक स्टेज आएगा आप ये ज्ञान से उसको बैलेंस नहीं, एक बार में 1 से 100 में जाओगे. मतलब आप उसको एक्ट करोगे एकदम, हाँ मेल मुझे इस टाइम पे, बट यू नो देयर आल्सो हैज टू बी अ बैलेंस एक्ट. यस, तो डेफिनेटली. मेरे केस में यही हुआ. I was getting dominated with one of my boss when my energy was very low and so low that I could not answer him back. So एक दिन उनको आंसर किया कि do you think I'm stupid? उसके बाद वो चुप हो गए, very powerful energy से चुप हो गए, उसके बाद से कुछ नहीं बोला. फिर कहीं पे मुझे फिर से मेरे में अभी ये और सीखना बाकी था, फिर दूसरे सेम सोल मिले, सेम बॉस, वही सेम चीज़, और मेरे में ना वो रेज आ गया, एंगर, दैट आई विल नॉट लेट एनीवन टच मी और से एनीथिंग. तो वो जो निकला ना वो एंगर के रूप में निकला या रिटेलिएशन के रूप में निकला, उसमें प्योरिटी नहीं थी. That will not be effective then. That was not effective. That was more like a war. Right. But then now I know. When you are neutral inside. Yeah. And you are in power. तब आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा that will be very effective. जो बाबा कहते हैं तीर लग जाएगा. और यही है शिव शक्ति स्टेट. इन दिस स्टेट शी इज द शिव शक्ति. द डुअल फॉर्म ऑफ विष्णु symbolizes the perfect balance of male and female, rendering the gender difference to almost nothing. तो अंदर में वो बैलेंस स्टेट, मेल या फीमेल डिस्क्रिमिनेट नहीं होके वो प्योर स्टेट, और फिर बाहर से खुद के लिए स्टैंड करना. To reset the balance, the patriarchal male and the patriarchal female must renounce their lust for power, position and property and become cooperative and supportive. और एक बात बताओ, मेरे पे बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस पॉइंट. इसमें भी ना फीमेल्स और फीमेल्स इन टुडेज दिस थिंग, दे मैनिपुलेट एनर्जी. Somewhere in some form of females they will try to act as I am very female-y. Like I have that energy, I can't do it, can you do it for me? In some समझते हैं खुद को. समझते नहीं है. That's also manipulative energy that you put out. Okay. That we are not aware that we are putting it out. Yes. Or they get succumb to the energy of the male this thing. दोनों में से कुछ एक तो होता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, कर दो. Those the tone also changes. And so
and sometimes we also want to be strong in front of those persons. So it is, then I realize it's completely in my hand. Definitely. I cannot manipulate things with my energy and later on claim that I want patriarchy, or like I don't want patriarchy. So ये बहुत practice की बात है. Because I go to an office, it's a male. Awareness बहुत ज़रूरी है. हाँ, मतलब we have, you know, you have been a doctor, so there's so many males around us, Yes, right? yes. As a female, if you are in a leadership position or anywhere, if you don't balance it out or act, people will like just delete and go. Definitely. The Shiv Shakti has to take an emerged form, Shiv Shakti. While the Pandav must be merged in order for the balance to be restored. The Shiv Shakti is Shiv के साथ combined Shakti. And that should be in a male body also. Male body, female body, sab. At this time, resistance to this is intensifying. ओम शांति. कुछ क्वेश्चन है, कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं. Resistensifying means it's increasing. Yes. Resistance It to will increase resistance to. to शिव शक्ति वाला स्टेट. हाँ, मतलब we are increasing is what you are saying. हाँ. हाँ बोलिए. जैसे उन्होंने बोला कि हमें उस कॉन्शियस में नहीं रहना कि फीमेल हूँ मैं, लेकिन हमारी कॉन्शियस में मेल जैसी होनी चाहिए. हाँ. पर दीदी अगेन फिर वो हम जेंडर बायस भी हो रहे हैं ना. नहीं, यहाँ पर आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन जेंडर बायस नहीं है. आपका इंटेंशन है जो पेट्रियार्कल मेन है उनको समझ दे देने का, ताकि वो शिव शक्ति स्टेट में शिफ्ट हो जाए. समझ गए? बिकॉज फीमेल वीक, हमारा ऑरा वीक होने के कारण, हम वल्नरेबल होने के कारण मेल्स कंट्रोल करके विक्टिमाइज कर देते हैं, है ना. तो हमेशा वो मेल और फीमेल का वो जेंडर बायस रह जाता है. तो इसीलिए आप मेल्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो जब तक उनको समझ में नहीं आए. तो फीमेल्स को स्टैंड लेना होता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, उस शिव शक्ति स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए. और इंटेंशन क्या होगा कि मेल्स जो डोमिनेट कर रहे हैं, जब आप अपना ऑरा को चेंज कर दोगे, आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे, तो फिर आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, वो पावरफुल हो जाएगा आपके ऑरा. आपके ऑरा जब पावरफुल हो जाएगा तो वो मेल जिसने आपको कंट्रोल करके एनर्जी ले रहे थे वो विड्रॉ कर जाएगा उससे. और वो विड्रॉ करके वो फिर वो फीमेल एनर्जी के साथ, उनका जो फीमेल एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर शिव शक्ति स्टेट में टिकेंगे. ओके. है ना. उनको उधर मेल्स को उस तरफ शिफ्ट करना है और फीमेल्स हमको इंटेंशनली उसमें शिफ्ट होना है शिव शक्ति स्टेट में. ओके. क्लियर हुआ? हाँ दीदी. तो देखना है कि कौन सी जगह पे मेल डोमिनेटिंग जो बात है उसमें मैं फंस जाती हूँ. कहीं ना कहीं मैं अपने को सबमिट कर देती हूँ. तो उसी समय ही ऑरा को चेंज कर लेना है, कॉन्शियसनेस को चेंज कर लेना है. और जैसे ही आपका कॉन्शियसनेस चेंज होगा, ऑटोमेटिकली जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो भी चेंज हो जाएंगे. ओके. थैंक यू दीदी. सो जो अभी आपने एक बोला ना कि दैट वी टैप इनटू द फीमेल एनर्जी विद इन देमसेल्व्स, ये आपने अनुभव किया है कभी? और इज इट राइट? It is right, I know. Yes. You know what I have observed, checking on, actually if I would have catched their vibration correct, inevitably truth for a lot of men. What happens is, if a female starts taking stand or start answering the logical point of view, because male have this
by default tendency that they're stronger in terms of calculation and all that. Female are by default considered as not that stronger in this thing. But anyway, अगर इन सब biases के बाहर जाए, जब आप उनको उस एनर्जी में टैप करते हो ना, समटाइम्स आई फील वो इमीडिएट उनका वो थॉट हिट करता है जो उनके घर में जो भी फीमेल्स है ना, उनके साथ जो बिहेवियर में जो भी डिफरेंसेस आते हैं या जो भी कॉन्वर्सेशन होता है, उनका वो थॉट हिट होता है. एंड आई हैव गॉट दिस वाइब्रेशन फ्रॉम वेरियस मेल्स व्हेन आई हैव tried pointing out something. They said, oh, in their mind they are seeing, okay, I hear this at my home also. So there is an awareness. आपको समझ में आ रहा है? It's very subtle. Understood. Associate कर लेते हैं. मतलब वो उस टाइम पे उसको रियलाइजेशन होता है. तो अभी जो आपने बोला ना, they can tap into that female energy. Yes. They understand the female energy when they observe the other female also doing the same. Actually, we only my aura attracts that energy. Okay. क्योंकि जब मेरा ऑरा वीक है तो वो मेल एनर्जी को अट्रैक्ट करता है कि कंट्रोल करो, आई एम वीक. तो फिर वो अट्रैक्ट होके आता है, फिर वो कंट्रोलिंग टेंडेंसी आ जाता है उनमें. पर जब आप ऑरा को चेंज करते हो, जैसे हम सोचते हैं कि तो वो बड़े हैं, स्पेशली हम जब सुपीरियर इन्फीरियर वाला स्टेट में रहते हैं, मैं इन्फीरियर हूँ, वो तो बड़े कुर्सी में है, वो कॉन्शियसनेस में आते ही हम अपना ऑरा को वीक बना लेते हैं. बट व्हेन यू चेंज इट कि नहीं, हम सब भाई भाई हैं या भाई बहन हैं, कोई बड़े कोई छोटे नहीं है, वो जो हॉराइजॉन्टल रिलेशन वो बिल्ड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली दिखाई देता है कि जो सीन आने वाला था वो सीन ही चेंज हो जाता है, बिकॉज यू हैव चेंज्ड योर ऑरा. और वो ऑरा जब चेंज कर देते हो तो फिर जो अट्रैक्शन पहले हुआ था वो दूर हो जाता है, अट्रैक्शन नहीं रहता है फिर. क्लियर हो? ये एक और भी सटल है, बहुत कन्वर्सेशन है, बोलती रहूँगी मैं आपको बाद में. हाँ, बोलो बोलो, कोई नहीं, बात कुछ नहीं. जैसे अभी कुछ भी ऑफ नए टीम में कुछ एक काम मैं कर रही थी, तो जिनको ये जो हैं, ये जो बॉस हैं, वो बोलते थे मीटिंग में जाके मैं करा दूंगा सॉल्व. बाय दैट मैं वाज अ टीम में और मैं वाज मी, मैं आई डिडंट नो, बट इट डिड हिट माय ईयर्स बिकॉज सारा काम आई वॉज डूइंग इट, तो इट डिड हिट माई ईयर. तो मैंने सोचा एक टाइम होगा जब मैं बोलूँगी इसका, मैं रेडी नहीं थी आंसर देने के लिए, मैं बोलूँगी एक टाइम. तो मैंने ऐसे धीरे धीरे प्रिपेयर से किया. आज के कॉल में उन्होंने क्या बोला, दिस इज देवो करा देगी, ही इज ओनली यूजिंग माई नेम, sorry he's my bad, he's only using my name, and he stopped using his name. I don't know what changed, what happened, because you changed your aura. but I didn't do anything. I just You didn't do, but you prepared yourself, right? That is why when we prepare, the scene changes. even when you have not done anything outside. Yes. मेरा आउटसाइड aura- करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा aura change. आपको सिर्फ एनर्जी चेंज करना है. एवरीथिंग पूरा एनर्जी का खेल है. So that was a beautiful experience. Yes. 2-3 times. इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रिपेयर्ड रहो. जहाँ पर प्रिपेयर्ड है वहाँ घबराहट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर हम घबरा जाते हैं वहाँ पर ही अटैक होता है. इसलिए हिम्मत का कदम बढ़ाने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं, हिम्मत का कदम उठाओ. एंड दैट इज़ द शिव शक्ति स्टेट, हिम्मत का कदम उठाना. उसका भी एक स्टेप आपने मुझे समझाया, एक पहला वाला स्टेप. आई थिंक वी शुड हियर दैट. इसका एक पहला स्टेप है, वहाँ क्लियर करने से पहले एक सीन आया था मेरा कुछ दिन पहले, डर रही थी. तो आपने बोला था ना डर को देखो, क्योंकि ये ट्रॉमा जितना होगा ये उतना होगा, राइट? फिर वो डर को देखो, फिर आपने डर के ऊपर एक राइट अप दिया था. आई एम नॉट श्योर सबको क्लियरली मतलब उस पर चर्न करा होगा या नहीं, उस पर बहुत ज़रूरी है. स्टेप 1 की वो डर आ रहा है तो उसको देखो, उसको बार बार क्वेश्चन करो. करते करते वो डर गया, फिर धीरे धीरे आपका थोड़ा वहाँ पे ऑरा क्लीनिंग होता है. फिर जाके आप ये नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो. यस. नहीं तो जितना आप अपने ऊपर काम करोगे उतना सीन चेंज हो जाता है. और सीन चेंज तब ऐसे ही होता है क्योंकि आप अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, राइट? डर को भगाते. आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर ही काम करना है. द अदर पर्सन विल मूव आउट. इट इज सो ब्यूटीफुल. हाँ, आज मेरे को कुछ करना था, करने में 20 मिनट लेट हुआ. एंड देन ही कॉल्ड मी, सेड ये कुछ हुआ क्या, प्राइस अपलोड नहीं हुआ क्या, दिख नहीं रहा है, नंबर्स नहीं बोले. तो मैंने बोला क्या हुआ, नहीं कुछ हुआ क्या.
I said हाँ प्राइस ही 20 मिनट लेट हुआ. That's it. I didn't say anything. He knows why. I was probably working or doing something. 20 मिनट लेट हुआ. मैंने कोई आंसर नहीं दिया. Then he said okay ठीक है. He didn't say. क्योंकि आपने डेयरिंग होके बोला, हाँ. आपने छुपाने की कोशिश नहीं किया, आपने घबराया नहीं, बस आपका एनर्जी वाज स्ट्रांग, सो ही कुड नॉट से एनीथिंग. अगर आप घबरा के वो करते सॉरी मैंने ऐसे कर दिया ये करते तो ही वुड हैव ट्राइड टू कंट्रोल यू. हाँ for 2 minutes both he and I was quiet. And I was like ये कोई गलती नहीं है, ऐसा ऑब्जर्वेशन था मेरा. हाँ, मतलब ऐसा हाँ. वो था वाइब्रेशन. Yes. Then मैंने बोला एनीथिंग. No nothing. हाँ. And I disconnected the call. Yes. Okay, thank you. Om Shanti.